18 दिन रखा है, 18 दिन ज्यादती का निशाना बनाते रहे हैं। हाँ जी। कितने बंदे थे ये टोटल? 4। 4 बंदे थे। हल्फन कह सकती हैं कि चारों बंदे ज्यादती करते रहे? जी मैं हल्फन कह सकती हूँ, चारों ही करते हैं। मेरे साथ हुई है, मुझे पता है इन्होंने ज्यादती मेरे साथ की है। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕਰ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਹਮਰਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲ ਨਾ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਗਏ। बैकग्राउंड ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਆਕਲ ਸ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਗਵਾਹ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ थाना सफदराबाद के हदूद गांव नवाकोट में। यहाँ पर एक ऐसा दिल खराश वाक़या रूनुमा होता है, पेश होता है, जो सुनने के बाद यकीन करें कि आपका ज़मीर कांप उठेगा। मेरे साथ 27 साल पाकिस्तान की बेटी, इस कौम की वो बहन बैठी है जिसको मेडिसिन खिलाकर बेहोश करके अगवा कर लिया जाता है। 18 दिन तक इसके साथ 4 बंदे गैंग रेप करते रहते हैं। क्या मामला है, क्यों अगवा किया जाता है और कहाँ पर ले जाकर ये सारा ज्यादती का निशाना इनको बनाया जाता है? इनसे बात करके जानते हैं कि मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नफीसा, उम्र कितनी है? 27 साल। ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 7:30 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕਰ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਹਮਰਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲ ਨਾ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ शाहकोट की तरफ ले गए। अगों आकल शाह ते गुज्जर। अच्छा, ये वो डॉक्टर और उसके साथ जो उसका लड़का था, इन्होंने आपको बेहोशी की दवाई खिलाई, उसके बाद बेहोश हो गया, आपको मोटरसाइकिल बिठा के ले गए? हाँ जी, मोटरसाइकिल बिठा के ले गए। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਕਲ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਹੈ ਕੋਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ? ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। 18 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੋਸ਼ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਹਮਸਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ 18 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, 18 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਨੱਸਣ ਦੀ, ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਲ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਕਲ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ? ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਆਕਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਗਵਾਹ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, 18 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਗੁੱਜਰ ਦੀ, ਉਹ ਰਾਖੀ ਰਾਤ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਬਹ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। बगैरत शख्स की बीवी भी मुलव्वस थी इसमें? हाँ, बगैर शख्स की बीवी मुलव्वस थी इसमें। 18 दिन रखा है, 18 दिन ज्यादती का निशाना बनाते रहे हैं। हाँ जी। कितने बंदे थे ये टोटल? 4 बंदे थे। हल्फन कह सकती हैं कि चारों बंदे ज्यादती करते रहे? जी मैं हल्फन कह सकती हूँ, चारों ही करते हैं। मेरे साथ हुई है, मुझे पता है इन्होंने ज्यादती मेरे साथ की है। अच्छा, मेडिकल वगैरह करवाया है? हाँ जी, मेडिकल करवाया है। उसके बाद कोई FIR, कोई कानूनी कार्रवाई की है? हाँ जी, सफदराबाद गए हैं, उत्थे उन्होंने धक्के मार कढ़ाना है। मुड़ के सैशन कोर्ट गए हैं, उत्थे भी आर्डर ले ने, हाई कोर्ट आर्डर ले ने, ते फिर साडी FIR होई है। FIR हो भी गई है, तो फिर भी साडे मुलजम नहीं फड़ रहे। एडे बा असर पुलिस वाले ने। नाज़रीन, ये मेरे हाथ में आप एक पूरा दस्ता देख सकते हैं, ये रद्दी है जिसके ऊपर
जज साहबान के भी ऑर्डर हैं कि उन मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन कागजों को सिर्फ कागजों की वैल्यू दी जाती है, इन कागजों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। इन कागजों की वैल्यू तब होती है जब इन कागजों पर बाबा जी मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगी होती है, वरना इन कागजों की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये हमारे पाक पुलिस के, पंजाब पुलिस के वो नौजवान, वो सफाई, वो हलाल की खाने वाले पुलिस अफसर हैं जो कि इंसाफ दिलाने के लिए सिर्फ बाबा जी की तस्वीर देखते हैं और उनको कोई ना मजलूम नजर आता है, ना गरीब नजर आता है, ना जालिम नजर आता है, ना कोई चीज नजर आती है। अच्छा, पुलिस के पास गए हैं, उन्होंने धक्के दे के निकाल दिया है। अन्यों ने कहा कि उन्हें रिश्वत खाधी, वो कहते ने यही पर्चा कर देंगे सानू 2-3 महीने उन्होंने सानू इंजी सानू रखिया। 2-3 महीने? हाँ, 2-3 महीने सानू इंजी उन्होंने जलील किया, कदी कीते अज कर देने, हुण कर देने। असी फिर हाई कोर्ट गए, सैशन कोर्ट गए, असी उत्थे जाके पर्चा करवाया, इन्होंने नहीं किया। नाज़रीन, ये बात यहाँ पर काबिल गौर है कि मेरे मुल्क में एक गरीब की बच्ची को घर से अगवा किया जाता है, एक गरीब की बच्ची को डॉक्टर के क्लिनिक से अगवा किया जाता है, 18 दिन तक उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, लेकिन 3 महीने तक उसकी FIR नहीं कटती, उसका पर्चा नहीं कटता। अब भाई कहाँ है हमारे इंसाफ, कहाँ है हमारे अदारे, कहाँ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसका दावा बार बार किया जाता है? उसके बाद क्या होता है? उस बाद अही पर्चा साडा हो गया, लेकिन आए दिन असी जाने, सानू बुलाते ने, असी जाने, कहते असी हुण फड़दे मुजलम, असी हुण फड़दे। सानू 2-3 महीने हो गए ने, साडे फिर मुलजम नहीं फिर भी पड़, 5 माह टोटल हो गए ने सानू जलील हुंदियां नूं। 5 महीनों च एक बारी भी एक बंदा भी नहीं फड़िया गया? नहीं, ਉਹਨੇ एक बंदा भी नहीं फड़िया हैगा। एक वो पुलिस आया जिवें डरदी है मुलजमां दे कोल। कोई धमकी वगैरह भी मिलती है आपको कि आप पीछा छोड़ दें, इस केस की बैकग्राउंड खत्म कर दे वरना आप पर हमला हो जाएगा? हाँ जी, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर वो इंसान नमा गुंडे, इंसान नमा दरिंदे या जानवर कह लें, उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। शक्ल से अंदाज़ा लगा लें कि ये बंदे कैसे हैं, इनका कारोबार क्या है। इनका कारोबार ये है कि गाँव में, देहात में देखा कि कौन सा गरीब घर है जिनका पीछे बैकग्राउंड नहीं है, उनकी बेटियों को मेडिसिन खिलवाई या अगवा किया, अगवा करने के बाद उनके साथ पंगा डाला, पंगा डालने के बाद उनके मकानों पर, उनकी ज़मीनों पर या उनके प्लाटों पर कब्जा करना इनका ये काम है। और इस काम में इनके साथ मुतलका थाना सफदराबाद की पुलिस, मैं कहता हूँ 110% इन्वॉल्व है, क्योंकि 5 महीने तक आप बंदा गिरफ्तार नहीं करते। और भाई कौन सी पुलिस है, कौन सा इंसाफ है, कौन से अदारे हैं और कहाँ है वो पाक वर्दी जो पहनकर आपके अंदर वो इंसानों वाला जुनून खत्म हो जाता है, बल्कि दरिंदे आ जाते हैं। अब आप क्या चाहती है, मीडिया बनाने का मतलब मकसद क्या है आपका? मेरा मतलब यह है मुलजमान नूं छेती तो छेती फड़ के सख्त सजा दी जाए, ताकि अगों आने वाली नस्ल से असर ना पवे, कि धी भैन किसी होर दी जिंदगी बर्बाद ना कर सकन। सब बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे ने। शोहर है? हाँ जी है। मेहनत मजदूरी करदा, 700 रुपया मजदूरी, रेंट ते ही मकान लिया है, पर इंसाफ है जायदा, अगों रिश्वत मंगते हैं, अगों कहते हैं कि पैसे लेके आओ, असं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट मसा पा सकते, रिश्वत कितने दे सकते हैं। 18 दिन बाद आप वहाँ से जब वापस आई थी, घर में शोहर का क्या रवैया था, बच्चों का क्या रवैया था, घर कैसे पहुँची थी? घर में चलते चलते मैं घर उतो चलते चलते पहुंची, तो उतो बड़ी मुश्किल, सब का रवैया मेरे नाल ठीक सी, लेकिन मैं ही करके मेरा रवैया अगों खराब सी, क्योंकि मैं एडी मुसीबत चों निकल के आई सी। नाज़रीन, ये कहानी है मेरे मुल्क में एक गरीब को इंसाफ न मिलने पर। ये कहानी है मेरे मुल्क में गरीब की बच्ची को अगवा कर लिया जाए तो यकीन करे कि 18 दिन उसका पता नहीं चलता, फिर वही बेटी खुद ही भागकर अपने घर आती है, फिर 5 महीने तक उसके मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता। या इसके बरअक्स देखें कि किसी अमीर ज़ादी को मोटरवे पर अनजान बंदे ज़्यादती का निशाना बनाते हैं तो 5-4 दिन के अंदर वो मुलजिम गिरफ्तार भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अमीर ज़ादी की बेटी होती है। यहाँ पर गरीब की बेटी है, यहाँ पर गरीब की इज्जत ललाम हुई है, उसका किसी को होश नहीं, क्योंकि होश सिर्फ बाबा जी की तस्वीर दिखाती है, होश सिर्फ बाबा जी के वो नोट दिखाते हैं, वो सिर्फ बाबा जी के नोट दिलाते हैं जिनके ऊपर फोटो छपी होती है लालच की, लानत की और मैं कहता हूँ कि अपने ज़मीर बेचने की। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी के बाद हमारे अदारों को होश आएगा, इस बहन को इंसाफ दिलाया जाएगा, या थाना सफदराबाद के उस ASI नवाज को पूछा जाएगा कि क्यों 5 मंथ तक क्यों नहीं वो मुलजमान गिरफ्तार किए गए। मुझे दीजिए इजाज़त, इसी उम्मीद, इसी यकीन के साथ कि इनको इंसाफ मिलेगा। अल्लाह निगहबान।